Okay, so good evening, everyone, whosoever has joined till now. So today's session will be a surprise session because in this session we will not be discussing the static ARD, but we will be discussing some of the important ARD which were in news in past 1-2 months. Okay, since all of you are preparing for current schemes right now, so you will be able to answer the questions what I will be asking today, and in this way you can revise and you can observe also that whatever you have studied you have retained it or not. Okay, or you have, if you have studied those topics, you have studied in a proper way or not. ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन होगा इसी से रिलेटेड होगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, आप उनको आंसर करना। सो आई विल बी ऑल्सो एबल टू व्यू, मुझे भी एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी जो है सही जा रही है कि नहीं, आप जो पढ़ रहे हो सही तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन in front of you is, what is minimum representation of small and marginal tenant farmers in a FPO, farmer producer organization में क्या होता है representation? Option is coming with D. Dhirendra is saying D. Amit Kumar is saying D. Abhishek is saying 50%. Okay, if anybody, I think ABM students today have also joined, so you can answer. ABM students also. Cool boss is saying 50. Kumer is also saying 50. Navneet is saying 50. Yes, yes, yes. All of you. Very good, very good. I think all of you are covering the current topics. आप सभी current topics को बहुत अच्छे से cover कर रहे हैं, because most of the answer what I am getting is D. It is 50% only. And recently government ने अभी इस change को लाया था, जो मिनिमम रिप्रेजेंटेशन था पहले एफपीओ में वो नहीं था, तो इस रिप्रेजेंटेशन को लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसके द्वारा क्या है कि जो भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे उसमें आपके 50% जो क्या है स्मॉल फार्मर्स होने चाहिए। बिकॉज पहले क्या हो रहा था कि एफपीओ में जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे उनका ही से हुआ करता था, वो जो बोलते थे वैसे ही हुआ करता था, तो छोटे फार्मर्स का से नहीं रहता था। तो उनके से को बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके वेटेज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये रिकमेंडेशंस लाए हैं कि 50%, ठीक है, उनका कवरेज होना चाहिए इस एफपीओ में, ताकि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो डिमांड है, उनमें भी सामने लाया जा सके। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके आने के एग्जामिनेशन के लिए। यस प्रणव, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। सो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप याद रखिएगा। जिन्हें नहीं पता था ये 50% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। A member of FPO cannot own more than what percent of total equity share? A member of FPO cannot own more than what percent of total equity share? Abhishek is saying 10. Amit is saying 10. Pulkit Govind is saying 10. Amit Kumar is saying 10. Tej is saying 10. Shivangi 10. Anybody else with a different answer other than 10? Everybody, because most of them are saying 10%. Anybody else with a different option? Nobody. So yes, the answer is 10 only, because I am seeing that only some 8-10 people are able to answer, and today we have more than 50% joining in this session. So you all must try to answer whatever it may be, the right, wrong. See, अगर आप गलत जवाब दोगे फिर आपको सही जवाब पता चलता है तो आप ज्यादा रिटेन कर पाओगे। तो ट्राई टू पार्टिसिपेट। ओके, गलत ही सही, बट आप जवाब दो। हम गलती करते हैं तो उससे ज्यादा सीखते हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन यू ट्राई टू गिव द आंसर। सही हो गलत हो, आपका कुछ भी एक गेस हो, आप ट्राई टू गेस दैट। ओके, ट्राई टू पार्टिसिपेट। तो सही इसका आंसर है 10% ओनली, जो मिनिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, government has decided to form 10,000 FPO. What percent of it are to be formed in aspirational districts? Deepa is saying 15, Sandeep 15, Dhirendra is saying 15, Anand Kumar, Pratiksha, Saurav, Kumer, all are saying 15. Shubham is saying 25, a different answer from Shubham. Rohini 25. Arpit is saying 33. Arpit is saying 33. Cool Boss is saying 15%. 15%. Pranav is saying B, 15%. Okay, very good, very good. All of you are trying to participate. It's a very good sign. So मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया था कि 10,000 FPOs, ठीक है, फॉर्म करेंगे, दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसमें से आउट ऑफ दिस 10,000 गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्रिएट 1,500, okay, 1,500 in aspirational districts. So 1,500 forms your what? 15% of this 10,000 FPOs. So right answer will be that is B, 15%. 15% जो है वो aspirational districts से होंगे जो अभी 10,000 FPO बनने वाले हैं. Question number 4, government has decided to form 10,000 FPO. Sunset date for the financial support as of now. 24, 25, 24, 25. Okay, okay. Shubham is saying C. Deepa is saying E. Vinit is saying E. Pranav C. Pulkit C. Pulkit C. Saurav is saying B. Himanshu is saying C. Okay, Sandeep is saying E. A mixed answer between, I think, C and E. C and E, B, C, E. B and E के बीच में एक mixed response दिख रहा है. So all of you are trying to participate. Mohan is saying it C. Govind is saying it E. तो देखिए इसमें क्या है, जो FPOs बनने वाले हैं लास्ट डेट, आप दोनों पे कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जामिनेशन में भी आपको, ठीक है, इन सब सारे पॉइंट्स को, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है. यहाँ पे बोला जा रहा है सनसेट डेट फॉर किसके लिए, नॉट फॉर दिस स्कीम. द क्वेश्चन इज सेइंग सनसेट डेट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट. तो फाइनेंशियल सपोर्ट की आप बात करिए कि लास्ट जो FPO बनेगा उसको हम कब तक फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे. तो आपको पता होगा कि लास्ट जो FPO बनने वाला है 2023-24 तक बनेगा, राइट. तो उससे 5 साल आगे तक हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ठीक है. 2023-24 के बाद 5 year most will provide them the financial support. तो 23-24 में जब 5 साल जोड़ लोगे, you will add 5 years to that 2023-24. It will boil down to what? It will boil down to E, that is 27-28. The right answer for this question will be your what? Financial support will be provided to them till the year 2027-28. So the right answer is E. Whosoever given it as E, very good. Anand Kumar is saying 2027-28. So don't confuse questions को. आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिए. यहाँ पे हमने फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की है, ना ही कि स्कीम के एंड डेट के बारे में बात की है, राइट. सो इन छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान में रखना एग्जामिनेशन में. Question number 5. Which of the following project will not get fund under AIF, that is Agriculture Infrastructure Fund? Which of the following project will not get funded under AIF? Answer has started coming. Shiva is saying C. Okay. Rahul is saying C. Hema is saying B. Amit is saying D. Shimangi is saying B. A mixed response between B, C, D. A mixed response. Arpit is saying B. A mixed response is from all of you. Vinit is saying E. Water harvesting. Shubham is saying dairy. Sandeep is saying D. Okay, okay, okay. Very good, very good. All of you are participating. So what I will ask you now, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें जो फंड दिया जा रहा है, ठीक है, जो लोन्स दिए जा रहे हैं, वो मेजरली 2 थिंग्स को दिया जा रहा है, कैटेगराइज किया गया है. व्हाट आर दोस 2 थिंग्स? कैन एनीबॉडी टाइप? कोई टाइप कर सकता है? किस 2 चीजों में इनको क्लासिफाई किया गया इन लोन्स को, इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को? कैन एनीबॉडी टाइप? Food processing, Himanshu, very good. One is food processing, right? Himanshu is saying right. Sherlock is, yes, it's food processing. Other one, other component. Yeah, post harvest food processing is same thing. Post harvest food processing is same thing. Other component, I am asking about the component. 2 components you will classify AIF funds. ठीक है, broad हमने 2 components में से classify करना, very important है. याद कीजिए क्या था, पहला तो किसी ने बता दिया post harvest. अदर इज योर फार्मिंग एसेट्स, जो कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स है उनको क्रिएट करने के लिए ये फंड होगा, ठीक है. सो 2 जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज योर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स एंड अदर इज योर पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए है दूसरा. तो ये 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. तो यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शंस देखोगे तो डेयरी फार्मिंग जो है यहाँ पे गलत होगा. क्यों गलत होगा? बिकॉज ना ही तो ये कम्युनिटी एसेट फार्मिंग एसेट के टर्म में आएगा, लॉन्ग टर्म एसेट ये नहीं है, ना ही ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आएगा. अगर मैं यहाँ पे डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट दे देता तो वो सही होता, बट यहाँ पे सिर्फ डेयरी फार्मिंग दिया गया है, तो ना ये दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, दैट इज डेयरी फार्मिंग, राइट. सो डेयरी फार्मिंग, कम्युनिटी फार्मिंग नहीं है ये.
कम्युनिटी एसेट की बात कही गई है, कम्युनिटी फार्मिंग नहीं, कम्युनिटी एसेट की बात कही गई है। एसेट क्या होता है? इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हो, वो एसेट होगा कम्युनिटी के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आप क्रिएट करते हो, दैट विल बी एसेट फॉर द कम्युनिटी, नॉट दिस डेयरी फार्मिंग। दिस इज अ पर्सनलाइज्ड थिंग। कोल्ड स्टोरेज विल गो टू योर पोस्ट हार्वेस्ट, प्रोसेसिंग प्लांट विल आल्सो गो बैक टू योर व्हाट पोस्ट हार्वेस्ट। तो यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन विल बी बी, दैट इज डेयरी फार्मिंग। Question number 6. The duration of Agri Infra Fund is still. The duration of Agri Infra Fund. Financial year, everybody is saying 29. Options are coming at E, 2029. Agri Infrastructure Fund is still 2029. Everybody is saying it as E only. So very good. Yes, it is for 10 years, Shubham. 10 साल के लिए 2020 से लेकर 2029 तक, 2020 to 2029, this agri infrastructure fund. Okay, and last is your financial year 2029. So E is the right answer. Very good. Question number 7. Minimum agreement period under the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance 2020 is? Dhirendra is saying 6 months. Shubham is saying okay, very good, very good. Rohini is saying 6 months. Rahul is saying 6 months. Very good, very good. Pulkit 6 months. 6. Arpit, Himanshu, all are coming with the 6 months. Anybody else with a different answer? Please type. Anybody else with a different answer? Navneet is saying B, 6. Okay. Maverick is saying 6 months, right? Okay, Prasad is also saying 6 months. So what I will tell you that again you try to read the question properly. आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और ध्यान से समझिए चीजों को, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड, ठीक है, अंडर द फार्मर जो भी है 2020 ऑर्डिनेंस के अंदर। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि मिनिमम जो होगा किसी भी क्रॉप ड्यूरेशन, किसी भी क्रॉप का ड्यूरेशन मिनिमम क्या हो सकता है, किसी भी क्रॉप का मिनिमम ड्यूरेशन क्या हो सकता है। फॉर सेक Shubham is saying 4 months. Okay, I may be cultivating a variety of groundnut. Say it develops within 2.5 months. Shubham, धीरेन्द्र से मैं ग्राउंडनट की खेती कर रहा हूँ, वो 2.5 महीने में फसल तैयार हो जाती है। मैं कोई ऐसा क्रॉप मान लो कर रहा हूँ तैयारी, ठीक है, आई एम ग्रोइंग रेडिश ऑनली, से रेडिश जो है वो 2.5 महीने में ही तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे वहां पे? That cannot be 4 months, that cannot be 6 months, that cannot be 8 months, and that cannot be 12 months also. The answer will be E, none of the above, because minimum period जो होता है वो डिपेंड करता है आपके क्रॉप के लाइफ साइकिल पे, ठीक है। That depends upon the life cycle of the crop. मेरा क्रॉप 2 महीने का भी हो सकता है, मेरा क्रॉप 3 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का भी हो सकता है। तो मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड विल डिपेंड अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ दैट क्रॉप। You cannot say blindly it has 4 months, 6 months, 8 months or 12 months. तो इसे आपको ध्यान में रखना है। Yes, one crop cycle. Mohan Kumar S is saying one crop cycle is the right term for this. One crop cycle कुछ भी हो सकता है, 2 महीने, 1 महीने, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी, यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आंसर क्या होगा। दैट इज E, 7 का आंसर होगा E। जरूर याद रखें इस कंसेप्ट को। इसी को क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया जाए, मैक्सिमम पूछा जा रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है, मैक्सिमम पीरियड व्हाट कैन इट बी अंडर दिस ऑर्डिनेंस। पुलकित इज सेइंग 1 year, कुमेर इज सेइंग 1 year, तेज इज सेइंग 1 year, राकेश इज सेइंग 5, संदीप इज सेइंग 5, cool boss is also saying 5, धीरेन्द्र इज सेइंग E, none, हिमांशु, शशांक D, C, Rahul is saying A, Amit is saying 2 year, Arpit, Sherlock 6 months. So again a mixed response from all of you. So confusion है इस क्वेश्चन में भी। तो अगर आप इसके क्लॉज को पढ़ोगे, इस ऑर्डिनेंस के क्लॉज को, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम पीरियड, मिनिमम का तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, बट मैक्सिमम में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दैट कैन नॉट बी मोर देन 5 years। तो आंसर आप याद रखिए, द मैक्सिमम पीरियड अंडर दिस ऑर्डिनेंस विल बी 5 year,
नॉट मोर देन दैट, आपको याद रखना है 5। हिमांशु एक्सेप्शंस हो सकते हैं, यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस हमने नहीं पूछा है, ओके। सो 5 ईयर विल बी द राइट आंसर फॉर जनरल कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम प्राइस अंडर दिस ऑर्डिनेंस इज कितना होगा? मिनिमम प्राइस, शिव भक्ति सिंह डी, आइदर ऑफ द अबव, यस एमएसपी एफआरपी, ओके डी। शुभम इज सेइंग डी, वेरी गुड। पुलकित डी, धीरेन्द्र इज सेइंग डी, प्रणव इज सेइंग डी, उमेर इज सेइंग डी, वेरी गुड। संदीप, आनंद, शशांक, Anshul is saying D, Govind is saying D, okay, Himanshu D, Rakesh D. So all of you are answering it as D. फिर से आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो मिनिमम प्राइस जो है इस ऑर्डिनेंस के अंदर, मिनिमम प्राइस अंडर दिस ऑर्डिनेंस एज रिटन इन द क्लॉज इज गारंटीड प्राइस। आपको जो टर्मिनोलॉजी दिया गया है इस ऑर्डिनेंस में, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इज गारंटीड प्राइस। गारंटीड प्राइस प्लस उसके ऊपर आप कोई भी बोनस दे सकते हैं फार्मर को, कोई भी प्रीमियम दे सकते हैं, दैट विल बी अबव दिस गारंटीड प्राइस ओनली। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ई, दैट इज गारंटीड प्राइस। जो मिनिमम प्राइस होगा उसे हम इस ऑर्डिनेंस के अंदर बोलेंगे गारंटीड प्राइस, ना ही हम इसे एमएसपी बोलेंगे, ना ही इसे एफआरपी बोलेंगे। और ये ऑप्शन नंबर डी आपको जान के दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। गारंटीड प्राइस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 10. The Farmer Produce Ordinance 2020 is valid till? Shiv is saying A. Shiv is saying A. Amit is saying C. Good. Amit is saying March 2021. Rohini is saying 2021. Yes. Sandeep is saying A. Shiv Bhakt, Tej is saying A. Achal is saying A. Amit is saying C. March 2021. Pranav is saying A. Ramneer is saying C. See, the reason behind giving this question is that option number A and C has been given, ठीक है, इसे जान के दिया गया। ऑप्शन नंबर सी तो वेरी मच ठीक है, इसे जान के ही दिया गया है ताकि आप इसे फाइनेंशियल ईयर से जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, आप इसे फाइनेंशियल ईयर से जोड़ने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होगा तो मार्च में होगा, तो आंसर विल बी सी। बट यहाँ पे केस नहीं है। एनीबडी टाइप्ड इट डाउन दैट एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो हमारे पार्लियामेंट जो है पास नहीं करती है, ठीक है, ये डायरेक्ट कैबिनेट से होता है। तो कोई भी, और इसे प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तो कोई भी ऑर्डिनेंस जब पास होता है, जितना भी अभी ऑर्डिनेंस पास हुए हैं वो वैलिड रहते हैं 6 मंथ्स के लिए ही ओनली। तो ऑल दिस ऑर्डिनेंस जो अभी आपको सुनने में आए होंगे कुछ दिनों पहले, ठीक है, ये जून महीने में ही आए हैं। तो जून महीने से आप क्या करिए, 6 मंथ्स को जोड़ लीजिए। तो दिस ऑल ऑर्डिनेंस विल बी वैलिड टिल ओनली दिसंबर मंथ ओनली, दिसंबर 2020। ठीक है, ये मार्च 2021 नहीं होगा, बिकॉज कोई भी ऑर्डिनेंस जो होता है जब तक वो ठीक है पार्लियामेंट से पास नहीं होता तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स तक ही होती है। बाद में भले उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स ही होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, दैट इज दिसंबर 2020, राइट, बिकॉज ये ऑल जून महीने में आए, तो जून से आप 6 महीने जोड़ लोगे तो इट विल बिकम 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person in contravention to trade provisions of farmer producing trade and commerce, promotion and facilitation will be subjected to maximum fine of, Pulkit is saying 2 lakhs। अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस आया, इसमें मैक्सिमम फाइन कितना होगा ट्रेड प्रोविजंस को अगर आप कॉन्ट्रावीन करते हो, इफ यू आर कॉन्ट्रावीनिंग द ट्रेड प्रोविजंस। शिव भक्त इज सेइंग 2 lakhs, Pulkit 2 lakhs, Amit is saying 2 lakhs, fine। So no response, 2 lakhs, saturated 2 lakhs। So the fine, see यहाँ पे देखिए दो चीज आपको देखनी है, कॉन्ट्रावेंशन और कॉन्ट्रावेंशन आप किस चीज पे कर रहे हैं, दैट इज ट्रेड प्रोविजंस में कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेड प्रोविजंस में कॉन्ट्रावेंशन करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे मिनिमम फाइन इज 25,000। यू कैन राइट इट डाउन, मिनिमम फाइन इज 25,000 एंड मैक्सिमम फाइन गोज
till 5 lakhs rupees. Maximum fine goes to 5 lakhs rupees. Yes, Rohini, it's 5 lakh. Maximum is still 5 lakh. अगर मैं यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन को चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दूं एंड आई आस्क यू कि मान लो प्लेटफॉर्म प्रोविजंस पे अगर आप कॉन्ट्राविन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म मींस जैसे ई नाम के प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना है, तो आप उनके सर्कुलर्स को अगर फॉलो नहीं करते हो, राइट, उनके सर्कुलर्स को आप फॉलो नहीं करते हो, तब फाइन कितना हो जाएगा? What will be the maximum fine in that case if you are contravening the platform provisions? यहाँ पे ट्रेड प्रोविजंस की बात हो रही है, जो मैंने आपको बता दिया 5 lakhs will be the maximum fine. अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके प्लेटफॉर्म प्रोविजंस बोला जाए तो what will be the fine? Navneet is saying 10 lakhs, Dhirendra 10, Amit is also saying 10 lakhs. Okay, so right answer for this is 10 lakh only. ठीक है, right answer for this is 10 lakh only. देखिए ऐसे आप याद रखिएगा चीजों को. यहाँ पे क्या है, ट्रेड प्रोविजंस में जितने फाइन है ठीक उसका डबल है प्लेटफॉर्म रिलेटेड फाइन. तो ट्रेड में कितना फाइन है? 25,000 से लेके 5 लाख तक. सो यू डबल दिस अमाउंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म रिलेटेड इश्यूज. तो वहां पे 25 का 50,000 हो जाएगा मिनिमम एंड 5 लाख का मैक्सिमम. ठीक है, कितना चला जाएगा? 10 लाख. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है. अगर मान लो कोई कंटिन्यूअस इन कॉन्ट्रावेंशंस को करते चला जाता है तो ट्रेड रिलेटेड केस में दी फाइन विल बी 5,000 पर डे एंड ठीक उसका डबल हो जाएगा प्लेटफॉर्म रिलेटेड प्रोविजन, दैट फाइन विल गो अप टू 10,000 पर डे. प्लेटफॉर्म हु इज सेइंग विनीत, यस, प्लेटफॉर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स मींस आपको किस प्लेटफॉर्म से ऑक्शनिंग करनी है अपने प्रोड्यूस को, राइट? यू कैन यूज द ई नाम पोर्टल, लाइक इट इज अ प्लेटफॉर्म. तो जिस तरह के सर्कुलर्स टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के आते रहेंगे, आपको उन प्लेटफॉर्म पे ही अपने प्रोड्यूस को ऑक्शन करना है, सेल करना है, ठीक है, प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है. दैट इज द प्लेटफॉर्म रिलेटेड प्रॉब्लम. Next question, payment to farmer, very important question. Payment to farmer under Farmer Producer Ordinance 2020 shall be made within. Shubham is saying 3, Shashank is saying D, 7 days, 1 week. Okay. Steve is saying 7. So mixed response between 3 and 7. Tej is saying D, Himanshu is saying 3. शिवांगी सिंह 2 days. तो देखिए इस ऑर्डिनेंस के अंदर जब भी आपको फार्मर के साथ सेटलमेंट करना हो, जब भी आपको फार्मर के साथ सेटल करना हो, गोविंद सिंह ए 1 day, तो the priority should be you should do the settlement within the same day, but it should be made within, the term within here is important. The settlement should be made within maximum of 3 days. It should be made within maximum 3 days. तो आंसर यहाँ पे 3 होगा, बट आपको उसी दिन सेटलमेंट कर देना. बट विद इन, अब जब लिमिट पूछा जाए तो इट विल गो टू मैक्सिमम ऑफ 3 days. 3 days के अंदर अंदर आपको सेटलमेंट कर देनी है. Yes, rare cases 3 days. That's why I'm saying within. Maximum limit is 3 days. Generally आपको 1 day के अंदर इसको कर देना, right, गोविंद? Question number 13. Dispute under Farmer Produce Trade and Commerce Ordinance shall be heard initially by. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरह के जो एपीएमसी के बाहर, ठीक है, बिजनेस होंगे तो वहां डिस्प्यूट होना तो जरूरी है, होगा ही होगा वहां पे डिस्प्यूट. तो ये जो डिस्प्यूट है वो कौन सुनेगा? SDM, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. ओके, SDM, आंसर इज कमिंग एज SDM. पुलकित SDM, अभिषेक इज सेइंग SDM. ओके, वीरेंद्र इज सेइंग C. SDM, आनंद इज सेइंग SDM. Deepa is saying DM, district magistrate, that is DC. Okay, so a mixed response from all of you from A and B, that is SDM and DM. तो फिर से आप लोगों ने यहाँ पे गलती की है. The answer Himanshu, yes, Himanshu is saying it right, that is conciliation board. जो SDM है, he will appoint that board. SDM will not hear. SDM will appoint the conciliation board. ठीक है, तो conciliation board ही इसको शुरुआत में सुनेगा. He will only hear the dispute whatever has happened. So answer for this question will be C, that is conciliation board. SDM will not hear it. Who will hear it? Conciliation board, and that will be okay. कौन इसको करेगा? That will SDM will appoint this board, conciliation board. Under this conciliation board only this dispute will be heard.
See, Vinay, the question in that case was not related to private, government, or whatever it may be. The question was, I am asking in that question was the quantum of fine what a person shall be paying for contravening the platform related circulars. Question number 14. What percent of fund is earmarked for micro food enterprise under Atmanirbhar package? Navneet C, Radhe Singh C. Okay, Vinith is also saying C. iPhone is saying C. Right, right. So the answer given by you is right. Answer given by you is right. That is 10,000 crore under this MF micro food enterprise. That is PMMFE. ठीक है, 10,000 ही है. So right answer is C only. Question number 15. Sharing ratio between center and state under PMFME. Sharing ratio between center and state. B 60:40. Sherlock, Shibak. Okay, all of you are saying 60:40. Okay. Yes. So all of you are correct. The answer for this question is 60:40 only. So याद रखने आपको शेयरिंग रेशियो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सारे हैं आपको जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं, ठीक है, इनको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा. इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. कुछ कुछ जैसे हर्बल कल्टीवेशन के लिए 4,000 करोड़ है, टॉप टू टोटल 500 करोड़. ओके, संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़. So this type of stats you all of you try to remember. These are important for your upcoming examination. Okay. Shubham, sir, it's exception for with Shubham for what you are asking this with legislature. I think regarded ordinance you are asking for this. Yes, initially it is for 6 months only. Since the sessions are since the parliament sessions अभी नहीं चल रहे हैं ना कोरोना की वजह से, तो उसी केस में ऑर्डिनेंस पास होता है क्योंकि पार्लियामेंट अभी काम नहीं कर रहा है. ठीक है, तो उसको और 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है. बट अभी टिल नाउ डेट के लिए हम इसे 6 महीने के लिए देखेंगे. जब 6 महीने अप्रोच होने लगेगा देन ओनली यू विल चेंज दिस. Said is saying 20,000 to see. I have taken this data directly from PIB, so you can match the data. 20,000 है, 20,500 you can match there. Change हुआ तो you can make that accordingly. Okay, this all data are taken from directly from PIB, so you keep in mind and check it out. It's 20,000 or 20,500, whatever it may be, that will be the correct. 60/40 is the right. 60/40 is right for that, Shubham. 60/40 is right. So friends, ये कुछ important questions थे जो मैंने current portion से लिए. ठीक है, आज के लिए यही important questions थे. So I think many of the questions you have got a clarity and you will not mistake if those type of questions are asked. तो की जो points है आपको एक एक points को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है क्योंकि काफी टाइम रहेगा. ESI ART के लिए आपके लिए टाइम की कमी नहीं होगी. एग्जामिनेशन के लिए 90 मिनट यू कैन 90 मिनट्स यू कैन यूटिलाइज फुल्ली. एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, कहाँ नो लगा है, कहाँ नॉट लगा है, इन सारी चीजों को आप जरूर ध्यान से देखें. वहां पे एक एक कीवर्ड्स को जरूर देखें कि क्वेश्चन में कीवर्ड कौन सा है, व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट, और उसी तरह से आंसर करने की कोशिश करें. ये आपके नेगेटिव मार्क्स को जरूर कम करेगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स फॉर टुडेज सेशन. आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट. एंड कल के जो क्लास जो हमने डिस्कस किया था, जो छूट गया था, आई विल अपलोड दैट इन दी यूट्यूब. ओके, वो मैं अपलोड कर दूंगा कल जो छूट गया था. थैंक यू फॉर टुडे. कैरी ऑन विथ योर स्टडीज. बेस्ट ऑफ लक एंड माय बेस्ट विशेस. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स.